Welcome back, friends. In the previous lectures, we have seen the logics of all the three methods of valuation of goodwill, that is average profit method, super profit method and capitalization method. We have also seen numericals on average profit method. So if you want to revise this or watch this, you can view the previous videos. Now in today's lecture, what we are going to do is we are going to solve numericals on the other two methods of valuation of goodwill, that is super profit method and capitalization method, as you can see on the screen. You already have the questions, so let's start with the first one on it. This is the question for your reference. Let's read it. On 1st April 1994, an existing firm means partnership firm, had assets of 75,000 including cash of 5,000. Its creditors amounted to 5,000 on that date. The firm had a reserve fund of 10,000 while the partner's capital showed a balance of 60,000. If the NRR, normal rate of return, we have seen all the logics in the previous class, is 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the existing firm. So one thing is for very clear that they are using super profit method here. Yes. Second, they have already calculated the value of goodwill at 24,000 and they are asking you to calculate the average profits, right? So let's go on. Now, firstly, let's calculate capital employed. Now, what exactly is super profit method? If you have to revise it, I've just written the formula here. You can just go through this. What was super profit? Super profit was average profit minus whole brackets capital employed into NRR. And the moment you arrive at super profit, you multiply super profit with number of years of purchase to arrive at goodwill, as you can see on the screen. ये सब हम previous classes में इसके logic discuss कर चुके हैं. अच्छा, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था, तो वो भी आपको बताया था. पार्टनर जो घर से कैपिटल लाता है वो तो है ही, बट द रिटेन्ड प्रॉफिट्स इन द बिजनेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी लास्ट लेक्चर में हमने दो फॉर्मूले देखे थे. व्हाट वाज दोस फॉर्मूला? वी हैड टू ऑप्शंस. द फर्स्ट वन वाज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, that is deferred revenue expenditure, minus market value of outside liabilities. There was another way to calculate it, that is balance in partners capital and current account plus all accumulated profits that are reserves minus losses that are deferred revenue expenditure, right? तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये उसके फॉर्मूलेज है जो एक बार आपको दिखा दिए. तो let's start with a working note. Let's start with a working note where we calculate capital employed. Well, there are two ways to calculate capital employed. एग्जाम में आपको एक ही तरीके से निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ वर्किंग नोट नंबर 1. तो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, आप जब अपना आंसर चालू करेंगे यू विल स्टार्ट विथ दिस वर्किंग नोट. मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स. क्वेश्चन की तरफ जाते हैं वापस. लेट्स सी. देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000. वेल, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, इट हैज नो रेलेवेंस. टोटल एसेट मेरे 75,000 है, अब उसमें कैश है, बिल्डिंग है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, इसमें लिखा होता है टोटल एसेट ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, तो हमने उसको एक्सक्लूड किया होता, पर यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश, सो इट हैज नो रिलेवेंस. सो माय टोटल एसेट इज 75,000 एंड चेक इन द सेकंड लाइन द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000, सो माय आउटसाइड लायबिलिटी इज 5,000. तो मेरे टोटल एसेट है 75,000 और मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है 5,000. यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए. सो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स इज 75,000, राइट, माइनस market value of outside liability is 5,000. So my capital employed is 70,000. तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के कैपिटल एम्प्लॉयड लगा लिया. अच्छा, इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब की इंफॉर्मेशन भी देखते दी हुई है या नहीं है.
सर थर्ड लाइन पढ़ते हैं. द फर्म हैड अ रिजर्व्स ऑफ 10,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000. तो यहां हम ऑप्शन 2 भी ले सकते थे, दैट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल इज 60,000, करंट अकाउंट इज नील, प्लस रिजर्व्स इज 10,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इज नील. तो अगर मैं ऑप्शन 2 पे भी जाता हूं तो माय आंसर कम्स टू 70,000, और मैं ऑप्शन अगर 1 पे भी हूं तो माय आंसर कम्स 70,000. सो गाइस, this is my first working note, right? My answer comes to 70,000 in both the cases. एग्जाम में आपको एक ही केस लगाना है, right? मैं फिर बता दूं एक बार. We started with working note, कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके, आपको एग्जाम में एक ही लगाना है. ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया. मोर ओवर क्वेश्चन में दोनों इंफॉर्मेशन भी दी थी. ऑप्शन नंबर 1, टोटल ऑफ ऑल एसेट्स दैट इज 75,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 5,000. बोर्ड पे देखिए तो 75 माइनस 5 70 आ गया. अच्छा, इस क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया था, तो अगर हम सेकंड फॉर्मूला भी लगाए तो कैपिटल 60, करंट नील, बोर्ड पे देखिए, प्लस रिजर्व 10 माइनस फिक्टिशियस एसेट नील. तो ऐसे आंसर निकालो या वैसे निकालो, माय कैपिटल एम्प्लॉयड इज 70,000. तो ये स्क्रीन पॉज करके आप वर्किंग नोट 1 लिख लीजिए, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. सिंस ये पहला क्वेश्चन है इस मेथड पे, तो आप दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं, बट एग्जाम में गो फॉर ओनली 1 ऑप्शन, राइट? तो स्क्रीन पॉज करिए और ये वर्किंग नोट से हम आंसर चालू करेंगे. आई होप आपने लिख लिया, राइट? नाउ गाइस, इस मेथड में हम और दो फॉर्मूले लगाते हैं. पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? हमारा पहला फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR. दिस इज माय फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट. एंड माई फॉर्मूला फॉर गुडविल, जो अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ना हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने गुडविल का वैल्यू निकाल के दिया हुआ है. लेट्स चेक. गुडविल का वैल्यू ये देखिए कितना दिया हुआ है उसने, नीचे देखिए. गुडविल ऑफ द फर्म, सेकेंड पैराग्राफ में, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 and that too at 4 years purchase of super profit. तो 4 years purchase है और गुडविल की वैल्यू है 24,000. तो हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं. गुडविल 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दैट इज 4. सो देयरफॉर माय सुपर प्रॉफिट is equal to 24,000 divided by 4. So the answer comes to 6,000. तो मुझे क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ था, तो पहले मैंने गुडविल के फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन डाली, तो मेरा सुपर प्रॉफिट का फिगर आ गया. यस, अब मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया, तो अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा. देखिए स्क्रीन पे जो सबसे ऊपर दिख रहा है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. सो सुपर प्रॉफिट is equal to average profit minus capital employed multiplied by NRR. अभी मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आया है? मेरा सुपर प्रॉफिट आया है 6,000 is equal to एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कुछ देर पहले हमने दोनों ऑप्शन से कैपिटल एम्प्लॉयड स्क्रीन पे देखिए 70,000 निकाला था. यस, so my capital employed is 70,000 and normal rate of return given in the question is 20%. check it. मैं वापस क्वेश्चन पे स्क्रॉल करता हूं. ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%. तो ये हमने यहां पे डाल दिया. तो 6,000 is equal to average profit minus 14,000. So therefore my average profit is equal to 20,000. तो
एवरेज प्रॉफिट पूछा था. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 3 to 4 मार्क्स, राइट. सो आपने वर्किंग नोट तो लिख लिया था. यस, वर्किंग नोट के बाद जस्ट राइट दिस डाउन. ये दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए. Again, the value of goodwill was given. तो इससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया. स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए. इसके बाद ये आपका सुपर प्रॉफिट आया 6000. उसके बाद आपने सुपर प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला लगाया. यस, प्लीज राइट डाउन बिट क्विकली. तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000. आई थिंक इट वाज सिंपल. बस याद रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल में फर्क है. कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, और द अदर फॉर्मूला इज मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज. फेयर इनफ. Now, let's start with the next question. Well, this is your next question on the screen. Let's read it. The profit and losses before appropriation for the previous year. Well, appropriation क्या होता है ये मैं next question में समझाऊंगा आपको, या next class में आपको समझाऊंगा. फिलहाल net profits for the last 4 years, rather last 4 years 2009, 10, 11 and 12 are given to you. Profit of 20,000, 34,000, 1 lakh and 1,50,000. The capital employed in business is 4 lakhs. The rate of interest expected from capital in such class of business is 10%, that is normal rate of return. The remuneration of partner estimated is 12,000 per annum in future. मतलब ये future maintainable profits के लिए आपको काम आएगा. Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit based on average of last 3 years. Average of last 3 years. Now this is a small googly there. आपको ऊपर इंफॉर्मेशन पिछले 4 साल की दी हुई है. 2009 देखिए सबसे ऊपर 2009, 10, 11 एंड 12, पर उसमें 2009 के प्रॉफिट का कोई काम नहीं है. अक्सर होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसलिए फ्रेम होते हैं ताकि स्टूडेंट एग्जाम में जल्दबाजी में 4 साल ले ले और उसका एवरेज निकाल ले. बट क्लियरली लास्ट लाइन देखिए क्वेश्चन की, ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 3 years. तो वी हैव टू कंसिडर ओनली एवरेज ऑफ लास्ट 3 years. ओके, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अवर स्टेप 1? अवर स्टेप 1, वेल मेथड कोई भी हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड. In all the 3 methods of valuation of goodwill, we have to consider future maintainable profits, right? तो सबसे पहले हम last 3 years का एवरेज निकालेंगे. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. Now starting with the solution. So average profit, वैसे हम स्टेप 1 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, पर अगेन यहां कोई एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं है. आप बोलोगे सर ये सब तो अपन ने पहली मेथड में किया था ना. मैंने आपको क्या कहा, कोई भी मेथड हो आपको एफएमपी तक तो पहुंचना ही है. प्रॉफिट इज ऑलवेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. पर अगेन इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ऑफ द पास्ट ईयर नहीं दिया है, तो माय नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एक्चुअल प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी द सेम. सो आई डायरेक्टली स्टार्ट कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट ऑफ last 3 years as asked in the question. तो last 3 years अगर हम बात करते हैं तो last year that is 2012 my profit was 1,50,000. उसके लास्ट प्रीवियस ईयर में इट was 1 lakh, और उसके पिछले साल there was a loss. Loss is to be considered as negative 34,000, and they have asked you simple average, so divided by 3. So 1,50,000 plus 1 lakh is 2,50,000 minus 34,000 is 2,16,000 divided by 3. So my average profit comes to 72,000. But this is the average of last 3 years. और क्वेश्चन क्लियरली क्या बोल रहा है कि फ्यूचर में
पार्टनर को देखिए स्क्रीन पे एकदम ऊपर देखिए, एस्टिमेटेड दैट 12,000 रुपए पर एनम फ्यूचर में हमें एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स हुआ। अब अगर मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालना है, तो हाउ डू आई कैलकुलेट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माय फ्रेंड? एवरेज प्रॉफिट 72,000 लेस incremental expenses in future that's given in the question, that is 12,000 per annum। और ये एवरेज प्रॉफिट भी एवरेज है, मतलब वो पर एनम ही है, 3 साल का है पर 3 साल का एवरेज है, मतलब वो पर एनम है। सो 72,000 इज ऑल्सो पर एनम एंड दैट पर ईयर एक्सपेंस इज ऑल्सो पर एनम, राइट? एंड देन एड incremental income in future, now that is nil, question does not specify it, देख लो। so guys, my future maintainable profit comes to 60,000, right? now they have said that you have to calculate goodwill at super profit method 2 years purchase। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो my formula for super profit is equal to average profit, but please don't confuse, formula में भले average profit लिखा हो but it always means future maintainable profit। super profit is equal to, formula आपने इसलिए बोलता हूँ याद नहीं करने का, जिन्होंने रटा है वो मरेंगे। सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट पर कोई भी मेथड हो, प्रॉफिट इज डिफाइंड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने निकाला, दैट इज 60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एनआरआर वाज गिवन इन द क्वेश्चन। यहां हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना है, लास्ट ईयर हमने निकाला, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। So 4 lakhs into 10%, so this comes to 20,000 and the next step is goodwill. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years of purchase. What is number of years of purchase? सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years purchase, 2 years purchase मतलब my number of years of purchase is 2, so my super profit is 20,000 multiplied by 2, so my goodwill is 40,000, right? So let's write it down। यहां से आपका सोल्यूशन चालू हो रहा है, लेट्स राइट इट डाउन। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, because the question specified that you have to calculate only of last 3 years, though the question provided you information about last 4 years, but if they are asking you to calculate average of last 3 years, you will stick to the question, right? हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, ये लिख लिया आपने। उसके बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये लिख लीजिए, आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 60,000, राइट? स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बाद यू कैलकुलेटेड सुपर प्रॉफिट दैट केम टू 20,000 and eventually you calculated goodwill which is at 2 years of purchase, so super profit multiplied by number of years of purchase, that is 2, so the answer is 40,000। I hope it's fine, right? Let's move to the next question. We'll check the question. From the figures given below, calculate goodwill
according to the capitalization of average profit method. It's a very simple question if you remember the formula for capitalization method. Well, capitalization method had two formulas: capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. Here they have asked you capitalization of average profit method. Now what is the answer or what is the formula? The formula for goodwill, either you directly calculate goodwill. फर्स्ट टू मेथड जो थी एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, वहां नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस रहते थे. हियर यू डायरेक्टली अराइव एट द फिगर ऑफ गुडविल. अगेन द लॉजिक्स हैव बीन एक्सप्लेन टू यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गुडविल? द फॉर्मूला फॉर गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय NRR minus capital employed. You just have to fill in the blanks. Average profit ऊपर ही देखिए क्लियरली लिखा हुआ है 72,000 डिवाइडेड बाय NRR 10%, right, minus capital employed. Well, we all know in the previous question also we have done capital employed निकालने के दो फॉर्मूले. पहला मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी और दूसरा कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट. अब यहां कैपिटल करंट नहीं दिया है पर देखिए ऊपर पॉइंट नंबर 3 और 4 में एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है. तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड. तो मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं इन प्लेस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 9,70,000 माइनस 4 lakhs. So 72,000, mind that it's divide by 10%. It's not multiply by 10% where the answer is 7,200. No, it's divide by 10%. So it comes to 7,20,000 minus 970 minus 4 lakhs, that is 5,70,000. So 7,20,000 minus 5,70,000, that comes to 1,50,000. All these questions are simple questions but very scoring questions because they'll be asking you in exam for anywhere between 3 to 4 marks, right? So check your answer. Question already आपके पास है, right? This is the solution. Please copy it from the screen. Okay, let's move to a wonderful question now. Something but different. There's the next question. Let's read it. Ajit and Baljit were sharing profits in the ratio 3:2. 3:2. They decided to admit Chaman into partnership for 1/6 of shares in the future profits. That's okay. Ajit, Baljit and Chaman. For convenience, we'll say A, B and C. Goodwill valued at 3 times the super profit of the firm was 78,000. Goodwill valued at 3 times the super profit of the firm was 78,000. So value of goodwill is given 78,000 and that too at 3 years of purchase. The firm had assets of 15 lakhs and liabilities of 12 lakhs. We all know अगर asset और liability दी है तो हमें क्या निकालना है? Capital employed. 15 minus 12, asset minus liability. So it comes to 3 lakhs. The interest rate of government bonds is 9% per annum and risk return rate is 5% per annum. Right? Now what do we mean by this? Find out the average profit of last 3 years. Let's understand step by step. सबसे पहले हम वो करते हैं जो हमें easily आता है, that is calculation of capital employed. So solution.
वर्किंग नोट 1, capital employed. Well, capital employed is equal to market value of all assets minus market value of outside liabilities. Outside liabilities as outsiders, not the owners, right? So market value of all assets was 15 lakhs and liabilities was 12 lakhs. So it was 15 lakhs minus 12 lakhs. 15 lakhs minus 12 lakhs is 3 lakhs. This is your working note 1, capital employed. Now working note 2, NRR of business, normal rate of return of business. Well, I can easily give you the formula and again what will happen is आप उसको रट लेंगे और समझेगा नहीं, and that's not the case in my classes. Let's go for the understanding. Let's take a very simple example. हम में से जिसके भी पापा या मम्मी बिजनेस करते हैं, राइट? बिजनेस करते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, राइट? I have just one question to ask, that let's assume that the capital invested by your parent in your business, right? The capital invested, जो पैसा आपके पेरेंट्स ने बिजनेस में लगाया, suppose that money is for example 1 करोड़, करेक्ट? आपके पेरेंट्स ने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए लगाए, राइट? और मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि वो बिजनेस कब करेंगे? जब द रेट ऑफ रिटर्न, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अभी मान के चलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपके पेरेंट्स बिजनेस से पैसा कितना लगाया? 1 करोड़ और कमा रहे हैं 5%। बिजनेस में पैसा कितना लगाया? 1 करोड़ और कमा कितना रहे हैं? 5%। अब मुझे एक बात बताइए, वुड यू रियली एडवाइज देम टू कंटिन्यू द बिजनेस? प्लीज टेल मी, सोच के बताइए, वुड यू रियली एडवाइज देम? सुबह से रात तक मम्मी पापा बिजनेस कर रहे हैं, करेक्ट? उसके बाद 1 करोड़ रुपए बिजनेस में पैसा लगा के दे आर अर्निंग हाउ मच? 5%. एज अ बेसिक कॉमर्स स्टूडेंट, वुड यू एडवाइज देम टू कंटिन्यू द बिजनेस? अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मैं तो कभी उनको एडवाइस नहीं करूं बिजनेस करने के लिए। क्यों? मैं उन्हें क्या एडवाइस करूंगा? 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डाल के आप 5% कमा रहे हैं, प्लस आपकी मेहनत भी लग रही है। इससे कभी भी बेटर है कि आप घर पे आराम करिए, मम्मी पापा, आप घर पे आराम करिए, और 1 करोड़ जो आपने बिजनेस में लगाया है उसकी जगह अगर कुछ नहीं तो सिंपल बैंक की फिक्स डिपॉजिट में भी लगा दिया, जो एकदम रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री है, पैसा डूबने का डर ही नहीं है, रिस्क फ्री है। उसमें भी कम से कम 7% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही है। तो मम्मी पापा, आपको बिजनेस में जाके मेहनत भी नहीं करनी है, और सेम पैसा अगर आप बैंक की सेफ फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आप 7% कमा रहे हो। तो व्हाट इज बेटर, रिस्क में बिजनेस चला के 5% कमाना कि सेफ इन्वेस्टमेंट में 60% कमाना? द आंसर वुड बी सेफ इन्वेस्टमेंट करके 60% भी कमाओ और मेहनत भी बचेगी। यस और नो? तो इसे कहते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये पैसा मैं बैंक में डाल दूं तो बिना दिमाग लगाए, बिना मेहनत किए, बिना रिस्क के मेरे को इतना पैसा मिल रहा है। तो इंसान बिजनेस करता ही क्यों है? तो आपका आंसर बहुत क्लियर है, सर इंसान बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि वो जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा ही बिजनेस कमा के देता है, तभी एक इंसान को बिजनेस करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व होने के बावजूद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो बैंक का एफडी का है उससे कम कमा के देता है, तो बिजनेस कभी कोई करता है क्या? नहीं करेगा। बिजनेस हम तभी करते हैं जब जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब बैंक के सेफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, उससे हमारा बिजनेस ज्यादा कमाता है। तो ये क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? ये देखिए लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, द इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट में पैसा लगाना है सेफ। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स का रेट कितना है? 9%। और नीचे देखिए रिस्क का रेट कितना है? 5%। मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ये हिंट था आपको एनआरआर निकालने के लिए। तो एनआरआर का मेरा फॉर्मूला हो गया रिस्क फ्री
rate of return plus return of risk. गवर्नमेंट में सेफ इन्वेस्टमेंट में डालूंगा तो 9% कमाऊंगा और बिजनेस का रिस्क है 5%, मतलब द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 14%. नॉर्मली हर क्वेश्चन में एनआरआर दिया रहता था, इस क्वेश्चन में ऐसा अलग टाइप से दिया हुआ है. देखिए छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, पर जब एग्जाम में आती है तो इट लीड्स टू अननेसेसरी कंफ्यूजन. इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर दैट वी सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास इटसेल्फ. तो मेरा वर्किंग नोट 1 हो गया एंड वर्किंग नोट 2 हो गया, राइट? आप पहले लिख सकते हैं. दिस इज योर वर्किंग नोट 1. प्लीज राइट इट डाउन फ्रॉम द स्क्रीन. And this is working note 2, NRR of business. Now, क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी. यस, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन इन द क्वेश्चन. अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला इन सुपर प्रॉफिट मेथड? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय NRR ऑफ बिजनेस, राइट? और गुडविल की वैल्यू उन्होंने निकाल के दी हुई है, दैट गुडविल इज वैल्यूड एट 78,000. Goodwill is valued at 78,000 and it is super profit multiplied by number of years of purchase, and my number of years of purchase in the question given is 3 times. Super profit multiplied by 3. So therefore my super profit will be 78,000 divided by 3. So my answer comes to 26,000. This is my super profit. Now moving on to next formula. तो goodwill दिया था इसलिए हमने goodwill का formula लगाया. Now moving on to the next formula. Super profit is equal to average profit minus capital employed into NRR. Now मेरा super profit अभी 26,000 आया है. Average profit तो they have asked me to calculate, minus कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR. NRR अभी हमने निकाला 14%, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? सो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के वापस वही दो फॉर्मूले, कैपिटल प्लस करंट प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, या फिर एसेट माइनस लायबिलिटी. तो इस क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज आपको दिए हुए थे. Asset was 15 lakhs and liabilities was 12 lakhs. So 15 minus 12, my capital employed is 3 lakhs into 14%. So 26,000 is equal to average profit minus 15 minus 12, 3 lakhs into 14%, that is 42,000. So therefore my average profit is equal to 42,000 plus 26,000, that is 68,000. So this question was almost like the first question what we did in today's video. The only small twist was that they had given a risk free rate of return, that is government bonds, and risk return. तो वो टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि ये दोनों को ऐड करके हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा. काफी बार स्टूडेंट माइनस कर देते हैं. आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क का रेट ज्यादा होता है. तो रिस्क फ्री अगर 9 है तो बिजनेस करने का रेट उससे कभी भी ज्यादा रहेगा, माइनस करना नहीं है. सी दीज आर वेयर द लॉजिक्स हेल्प यू इन एग्जामिनेशन इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, right? So you can just write it down.
वर्किंग नोट आप लिख चुके थे, राइट? दिस वॉज योर फर्स्ट वर्किंग नोट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. This was your second working note of NRR in the business. Okay, please write down. Please pause the screen and write down. And the last treatment. I hope you're pausing the screen and writing down. So these were some questions on super profit method and capitalization method, right? So please write it down. We'll continue in the next lecture. Thank you.